عید کے دوسرے دن کی خنک اور روشن صبح اپنے ساتھ بے پناہ خوشیاں اور ہنگامہ لے کر ٹھہلو ہوئی تھی۔ خانہ ہاؤس جو عام دنوں میں بھی اپنے وسیع و ریز رقبے اور مکینوں کی چہل پہل کی وجہ سے کسی میلے کا منظر ہی پیش کرتا تھا، آج تو جیسے پورے شہر کی رونقیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ عید کی روایتی مٹھاس، شیر خورمے کی مہک اور نئے کپڑوں کی خوشبو ابھی فضا میں پوری طرح رچی بسی تھی کہ اس پر سہاگا اسفن اور ضلع ہما کی شادی کی تیاریوں نے گھر کا ماحول یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ حویلی کے اونچے اونچے دروازوں اور محرابوں کو گیندے کے پیلے، نارنجی اور چنبیلی کے سفید پھولوں سے اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھ ٹھہر جاتی۔ باورچی خانے سے اٹھنے والے دیسی کی قورمے بریانی اور زردی کی اشتہار انگیز مہک نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اسفن کل رات ہی دبئی سے پہنچا تھا اور اس کی آمد نے گھر میں جیسے خوشیوں کا ایک نیا کرنٹ دوڑا دیا تھا۔ ایک طرف عید ملنے کے لیے آنے والے مہمانوں اور رشتے داروں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور دوسری طرف لان میں رکھی بڑی بڑی دیگوں کے پاس کام کرنے والوں کا شور تھا۔ فیملی کی دوسری بڑی شادی تھی، اس لیے جوش و خروش آسمان کو چھو رہا تھا۔ گھر کے کونے میں سے دوسرے کونے تک کزن کی ٹولیاں ہنستی کھیلتی اور ادھم مچاتی پھر رہی تھی۔ ان سب رونقوں، شور شرابے اور ہنگاموں سے مکمل بے نیاز حویلی کے بلائی حصے میں واقع خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں آج کی دلہن ضلع ہما بے ست سو رہی تھی۔ اسے گلابی رنگ کا نرم گداز کمبل سر تک اوڑا ہوا تھا اور دنیا مفیحت سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ رات بھر جاگنے اور کزنس کی باتوں کی وجہ سے اس کی آنکھ بہت دیر سے لگی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور کی کزن اور بھابھی مشال، جو کہ دراصل جنید کی بیوی سہرش کی چھوٹی بہن تھی اور سب اسے پیار سے مشال بھابھی کہتے تھے، طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کے پھولوں کی ایک ٹرے تھی جسے اس نے دھپ سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے سے ہما کا کمبل کھینچ لیا۔ ہما، اوے ہما کی بچی، جاگ جو یار، حد ہوتی ہے سونے کی۔ آج شام تمہاری مہنگی مہندی ہے، پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا سب نے، مہمانوں کا رش لگا ہوا ہے، اور ایک تم ہو کہ تمہیں ابھی تک سونے کی پڑی ہوئی ہے۔ نشال نے چنچلا کر ہما کے کندھے کو زور سے ہلایا۔ ہما نے انتہائی بیزاری سے منہ بناتے آنکھیں سگیری اور پاس پڑا تکیا دوبارہ اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے دو یار مشال، مجھے نہیں اٹھنا ابھی۔ ہما کی غنود کی اور نیند سے بھری آواز تکیے کے نیچے سے ابھری۔ مشال نے غصے سے اسے دوبارہ جھنجھوڑا تو ہما نے جھنجھلا کر تکیا اٹھایا اور منہ بسورتے بولی، ہاں تو سونے دو نا مجھے، اس خان نے مجھے آگے کہیں راستے سونے ہی نہیں دینا، تو بھی میری نیند پوری کرنے دو مجھے۔ یہ کہہ کر ہما نے انتہائی معصومیت سے دوبارہ آنکھیں بند کی اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وشال تو جیسے بتی بن گئی، اس کی آنکھیں پوری حیرت سے کھل گئی اور وہ چند سیکنڈ تک ہما کا منہ دیکھتی رہی۔ سب میں کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہما جیسی شرمینی لڑکی کے منہ سے اس نے ابھی ابھی کیا سنا ہے۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا ہما؟ وشال نے ہکلاتے ہوئے حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ وشال کی تیز اور حیرت انگیز آواز سن کر ہما کے ہوش و حواس اچانک پوری طرح جاگے۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ نیند کے خمار میں اس کے منہ سے یہ کیا ہی پھسل گیا۔ اسے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ نہیں، وہ میں تو ایسے ہی بول رہی تھی، میرا مطلب ہے وہ مجھے نیند آ رہی تھی نا، تو بس کچھ بھی مجھ سے نکل گیا۔ ہما نے ہکلاتے ہوئے صفائیاں دینا شروع کی۔ دراصل کل رات اس کی دوستوں اور کزن سے مل کر اسے ساغرات کے حوالے سے اتنی تفصیلی، خوفناک، شرمناک اور ہوش اڑا دینے والی کہانیاں سنائی تھی کہ ہما پہلے تو ان کی باتیں سن کر روحان سی ہو گئی، پھر ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، لیکن بعد میں اس نے خود کو سنبھالتے ان کی باتوں کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن وہ تمام باتیں اس کے لاشعور میں اس قدر بیٹھ چکی تھی، کبھی نیند میں بھی اس کے منہ سے یہی پھسل گئی۔ وشال اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی، لیکن پھر خود کو سنجیدہ کرتے بولی، شرم تو نہیں آتی نا تم لوگوں کو؟ پتہ نہیں کل رات بیٹھ کر تم لڑکیوں نے کیا کیا خرافات ڈسکس کیے ہیں۔ اٹھو جلدی سے اور نیچے آؤ، تائی جان غصہ کر رہی ہے۔ وشال یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ہما نے ایک لمبا سانس لیا، پھر دل پر ہاتھ رکھا، شکر ہے بچ گئی۔ کمینی لڑکیوں، صبح صبح بھابھی سے پڑھنے والی تھی،
सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसे देवी ने अपनी कजन्स को कोसा और बिस्तर से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर नीचे पहुंची तो घर का मंजर ही देखने वाला था। ड्राइंग रूम से लेकर टीवी लाउंज तक हर जगह फैमिली मेंबर्स का कब्जा था। फिरोज खानदान का खानदान कोई आम खानदान नहीं था, एक पूरी सियासत थी। फिरोज खान के 3 बेटे और 1 बेटी थी और सबसे बड़ी एक हवेली और इससे मुस्तकिल हिस्सों में रहते थे। सबसे बड़े बेटे शाहिद खान थे, जिनकी बीवी हाजरा की इंतहाई बावकार खातून थी। उनका एक ही बेटा था जुनैद खान, जो सब कजन्स में सबसे बड़ा, इंतहाई समझदार और पूरी फैमिली को साथ लेकर चलने वाला था। दूसरे नंबर पर अंसर खान और उनकी बीवी राबिया थी। उनकी 2 बेटियां थी, सहरिश और शिजा। सहरिश की शादी बड़े कजन जुनैद से हो चुकी थी और उनका एक बहुत ही प्यारा इंतहाई शरारती 3 साला बेटा था, निहाल खान। उसी वक्त लाउंज में सहरिश अपने जूते हाथ में पकड़े निहाल के पीछे पीछे भाग रही थी, जो कि ईद के नए कपड़े पहनकर मिट्टी में लोट-पोट होने की कोशिश कर रहा था। और तीसरे नंबर कैसर खान थे, जिनकी बीवी समीरा थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा मेहराब खान, जो कि दिखने में जितना हैंडसम और पुरकशिश था, मिजाज का उतना ही सख्त, गसीला और असूलों का पाबंद था। मेहराब का निकाह अपनी कजिन शिजा से हो चुका था और पूरी फैमिली को उनकी रुखसती का बेसब्री से इंतजार था। मेहराब की 2 छोटी बहनें थी, जिले हुमा, जो कि आज की दुल्हन थी, और सबसे छोटी फिजा, जो कि घर की सबसे बड़ी चुलबुली, हाजिर जवाब और शरारती लड़की थी। फिरोज खान की इकलौती और सबसे लाडली बहन मिसेस महरूर खालिद थी, जिनकी शादी शहर के एक मशहूर और माने हुए बिजनेसमैन से हुई थी। उनका एक बहुत बड़ा शानदार बंगला भी खान हवेली के बिल्कुल ही करीब था। मिसेस महनूर खालिद के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा असफंद खान थे, जो कि दुबई में अपना एक कामयाब बिजनेस सेट कर चुका था और अपनी मोहब्बत जिले हुमा से शादी करने के लिए छुट्टियां लेकर आया था। उसका छोटा भाई अरहम था, जो भी यूनिवर्सिटी में जाता था और शरारतों में फिजा का ही हम पला, बल्कि उससे 2 हाथ आगे ही था। जब ये तमाम कजिन्स एक जगह इकट्ठे होते तो घर का कोना कोना कहको लड़ाई झगड़ों और शरारतों से गूंज उठता। आज भी कुछ ऐसा ही समा था। हुमा जैसे ही लड़कियों के झुरमुट में पहुंची, सब कजिन फिर से इकट्ठी हो गई और उनका हंसी मजाक और छेड़छाड़ का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। फिजा ने हुमा को देखते ही आंख मारी और बोली, क्यों भाई दुल्हन रानी, रात की ट्रेनिंग कैसी रही? कुछ और ठिकाने आई है? अभी भी दुबई वाले शेख का नाम सुनकर कांप रही हो? इस बात पर सब लड़कियों का एक जोरदार कहका बुलंद हुआ। हुमा ने गुस्से से फिजा को घूरा, बकवास बंद करो अपनी। तुम लोगों की वजह से सुबह सुबह मिशाल भाभी के सामने मेरी क्या बेइज्जती होते होते बची है, तुम्हें क्या अंदाजा? हुमा की बात पर लड़कियां मजीद हंसने लगी। दूसरी तरफ लड़कों की महफिल सजी हुई थी। असफन अपने दोस्तों और कजन्स के दरमियान बैठा कहके लगा रहा था। सफेद शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पर हल्की दाढ़ी के साथ दिलक वजीहा लग रहा था। उसकी नजरें बार बार खवातीन के हिस्से की तरफ उठ रही थी। शायद वो हुमा की एक झलक देखने के लिए बेताब था। अलहम ने उसकी चूड़ी पकड़ ली और जोर से खनकारते हुए बोला, भाईजान, दुबई की खजूरें खा खा कर आपकी नज़र कुछ ज़्यादा ही तेज नहीं हो गई? जरा कंट्रोल करें। शाम को मेहंदी है, फिर आराम से देख लीजिएगा अपनी दुल्हन को। अभी से क्यों अपनी आंखों के रेडार्स इस तरह घुमा रहे हैं? अलहम की इस बात पर जुनैद और मेहराब समेत सब लड़के भी सख्त हंस पड़े। मेहराब, जो कि आमतौर पर संजीदा रहता था, आज वो भी मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी अपनी नजरें बार बार शीजा को तलाश कर रही थी। और गुजरने के साथ साथ घर की गहमा गहमी में इजाफा हुआ था। दोपहर के खाने के बाद शाम की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया। मेहंदी का फंक्शन घर के वसी लॉन में रखा गया था, जिसे एक शानदार थीम के तहत सजाया गया था। लॉन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया था, जिस पर जर्द और सब्ज रंग के गद्दे और गाव तकिए रखे हुए थे। चारों तरफ गेंदे और मोती की लड़ियां लटक रही थी और इनके दरमियान पीली रंग की फेरी लाइट्स जगमगा रही थी। फिजा में हिना और इत्र की मशहूर कन खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, घर की औरतों ने मेहंदी की तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। हुमा को मेहंदी के पीले रंग की इंतहाई खूबसूरत और भारी गरारे में तैयार किया गया। उसके माथे पर झूमर और कानों में फूलों की बालियां उसे किसी मुगल शहजादी का रूप दे रही थी। उसे जब लड़कियों की झुरमुट में स्टेज पर लाया गया तो सबकी नजर उस पर टिक गई। असफन भी उसे देखकर जैसे पलक झपकना भूल गया। फंक्शन का बकायदा आगाज हुआ तो सब कजन्स ने मिलकर
ढोलक पर थाप दी और रवायती शादी के गीत गाने शुरू कर दिए। लुड्डी डाली गई और हर तरफ एक जश्न का समा पैदा हो गया। माहौल को बहुत ही प्यारा और जज्बाती सा शो करवाया जा रहा था। हर तरफ हंसी, खुशी और गहमा गहमी का आलम था। हुमा की बिल्कुल साथ शीशा बैठी थी, जिसे सब्ज रंग का एक इंतहाई खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था और वो भी गजब ढा रही थी। हुमा ने इर्द गिर्द फैली खुशियों और मेहराब की बार बार शीशा की तरफ उठती उन नजरों को नोट करते शीशा को कई बार कौनी मारी और सरगोशी के अंदाज में बोली, यार शीजा, देखो कितना प्यारा माहौल है ना, सब कितने खुश हैं। लगे हाथ अगर ताया जान और अब्बा तुम्हारी और मेहराब भाई की भी रुखसती कर देते ना, तो मज़ा ही आ जाता। मेहराब भाई को तो खुशी मिल जाती, बेचारे कब से इंतज़ार में है। हुमा ने मुस्कुराती अपनी कज़न और बेस्ट फ्रेंड को छेड़ा। शीजा ने हुमा की बात सुनकर फ़ौरन मुंह बनाया। उसके माथे पर शक्नी उभर आई और वो मुंह बोसोरते हुए बोली, खुदा का खौफ करो हुमा, मुझे अभी नहीं रुक थोड़ा, मुझे तो उस अजाब से ही माफ़ रखो। पूरे जल्लाद टाइप बंदे हैं तुम्हारे वो मेहराब भाई, नाक पर तो हर वक्त गुस्सा ही धरा रहता है उनके। तुम जरा उनकी तरफ देखो, अभी भी घूर रहे हैं। घूरते तो ऐसे है जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। मेरी तो जान निकलती है उनके गुस्से से। शिजा ने एक लंबी आह भरते अपने खौफ का इजहार किया। पास ही बैठी फिजा ने, जो इनकी बातों पर गुफ्तगू बगौर से सुन रही थी, फौरन लुकवा दिया। अरे मेरी भोली शिजा हपी, तुम्हारी स्वागरात को पूरा का पूरा खाएंगे। अभी यहाँ सबके सामने थोड़ी खा जाएंगे। हाल बता, अभी अगर तुम इन्हें अकेली मिल भी गई ना इस हवेली के किसी अंधेरे कोने में, तो वो बस जरा सा चखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिजा ने आंखें मारते हुए इतनी शरारत से बात कही कि हुमा और आसपास बैठी बाकी लड़कियां अपना मुंह छुपाकर बेतहाशा हंसने लगी, जबकि शीजा का चेहरा शर्म और हया से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे जल्दी से फिजा की पीठ पर एक हल्की सी चिपट लगाई। बेशरम लड़की, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हें, बड़ों से कैसे बात करते हैं। शीजा ने छींकते हुए कहा। मेहंदी की तकलीफ रात के तक अपने पूरे जोबन पर रही। लड़कों का डांस, लड़कियों की चहचहाट, ढोलक की थाप और बुजुर्गों की दुआएं ने उस रात को यादगार बना दिया। असफंदर हुमा की नजरों का बार बार मिलना और फिर शर्मा कर झुक जाना एक अलग ही दास्तान सुना रहा था। और दूसरी तरफ मेहराब और शिजा की खामोश मोहब्बत भी सबकी तवज्जो का मरकज थी। मेहंदी की तकरीब के अख्ताम के बाद जब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए गए, तो हुमा के दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी का मिला जुला एहसास था। कल उसकी शादी थी, हमेशा के लिस्फन की होने वाली थी, और अगले दिन का मंजर तो रात से भी ज्यादा शानदार और हंगामा खेज था। खाना उसकी इस तवील और रोशन सुबह का आगाज किसी आम दिन की तरह नहीं हुआ, बल्कि आज की सुबह अपने दामन में बेशुमार रंग, हंगामे, कहके और खुशियों की वो नवीद लेकर आई जिसका इंतजार इस हवेली की दरो दीवार को कई महीनों से था। फेरोज खान का ये अट्टल और खानदानी असूल था कि उनके खानदान की कोई भी खुशी, बिलखुसूस शादियाँ, किसी भी बैरूनी शादी हाल या मार्की में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी अपनी आबाई और वसी और इस हवेली के सहन में उन तमाम तकरीबात की गवाह बनी थी। हवेली का रकबा इस कदर बड़ा था कि इसमें बैक वक्त हजारों मेहमानों की तवाज़ा की जा सकती थी, और आज के दिन के लिए तो हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली के मरकजी दरवाजे से लेकर अंदरूनी दालानों तक हर जगह सुर्ख, सुनहरे और सफ़ेद रंग के रेशमी पर्दों, गेंदे और चमेली के ताज़ा फूलों की सजावट की गई थी, जिसकी भीनी भीनी और खूरकिन खुशबू ने पूरे माहौल को मुअत्तर कर रखा था। जैसे महानूर खालिद का शानदार और जदीद तर्ज का बंगला, चूँकि खान हवेली के बिल्कुल करीब ही था, बस 2 गलियां छोड़कर ही वाक़या था, इसलिए तय ये पाया था कि बारात वहीं से इंतहाई शान और शौकत और रवायती धूमधाम के साथ पैदल घोड़ों की सवारी के साथ हवेली तक आएगी। घर के अंदर गहमा गहमी अपने रूज पर थी। नैराब खान और जुनेद खान ने सारी बैरूनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा रखी थी। जुनेद जहाँ एक तरफ केटरिंग वालों, बावर्चियों और देगों के मामलात को संभाल रहा था, वहीं मेहराब अपनी मखसूस रूपदार और गर्जदार आवाज में डेकोरेशन वाले लड़कों को फूलों की सेटिंग और कुर्सियों की तरतीब दुरुस्त करने की हदायत दे रहा था। मेहराब की सख्त की तबीयत से घर का हर फर्द वाकिफ था। आज भी उसके माथे पर हल्की सी शिकन मौजूद थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार हवेली के भलाई हिस्से की तरफ भी उठ रही थी।
जहाँ उसकी मनकूहा शिजा तैयार हो रही थी। और शिजा के ख्याल आते ही मेहराब के चेहरे की सख्ती कुछ लम्हों के लिए गायब हो जाती और वो एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके लबों के गिर्द रक्स करने लगती। और दूसरी तरफ घर की खवातीन का अपना ही एक अलग महाज खुला हुआ था। हुमा को ब्यूटिशियंस थे सुबह सवेरे अपने निज़ार में ले लिया था। सुर रंग के बारी अरूसी जोड़े जिस पर सुनहरी तारों, दुबके और मोतियों का इंतहाई नफीस और कीमती काम किया था। वह मलबूस हुमा वाकई किसी मुगल शहजादी का रूप धारे हुए थे। उसके चेहरे पर जहाँ दुल्हन बनने की फितरी शर्मो हया थी, वहीं कजिन्स की कल रात वाली बातों का खौफ भी अभी तक उसकी बड़ी गुलाफी आंखों में छुपा हुआ था। विशाल भाभी, शिजा और फिजा उसके इर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडरा रही थी और उसे मुसलसल छेड़ कर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर रही थी। शिजा ने हुमा की दुपट्टे की सेटिंग दुरुस्त करते उसके कान में सरगोशी की कि हुमा, आज तो तुम्हारे दुबई वाले शेख असफन खान तुम्हें देखकर वही ढेर हो जाएंगे और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी ना वो आज रात पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही हुमा ने गुस्से से शिजा को घूरा और बोली, तुम ना अपनी जुबान को लगाम दो और न मैं तायजान से कहकर आज ही तुम्हारी और मेरा भाई की रुखसी भी करवा देनी है। और फिर देखना तुम्हारी वो जल्लाद शौहर फिर तुम्हारा क्या असर करते हैं। हुमा की इस जवाबी वार पर शिजा का रंग एकदम जैसे फक पड़ा। उसने जल्दी से अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मुझे तो नहीं अभी रुखसत होना। महराब के गुस्से से वैसे भी मेरी जान सूख जाती है। अल्लाह जाने उस आग रात को मोहब्बत भी करेंगे या वहां भी मुझे डांटना शुरू कर देंगे। शिजा की इस मासूमाना बात पर विशाल और फिजा ने बेख्तियार कहका लगाया, जिससे कमरे का माहौल मजीद खुशगवार हो गया। उधर महानूर खालिद के बंगले में असलम खान अपने स्याह रंगीन ताई कीमती और दिलकश शेरवानी पहने, सर पर रवायती सुर्ख कुल्ला सजाए, पैरों में मैचिंग गुस्सा पहने शीशे सामने खड़ा बार बार खुद को देख रहा था। उसके चेहरे पर छाई बेताबी साफ बता रही थी कि वो जल्द अज जल्द अपनी दुल्हन को अपने हमरा लिए जाना चाहता है। और हम जो कि अपने भाई से भी ज्यादा एक्साइटेड था। उसने भी गहरे नीले रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उस फन के पास आया मुस्कुराते हुए बोला, भाईजान जरा अपने चेहरे के तासुरात पर काबू रखें। आप तो ऐसे बेताब हो रहे हैं जैसे बारात लेकर नहीं बल्कि हवेली पर हमला करने जा रहे हो। थोड़ा सब्र करें। हुमा भाभी कहीं भाग नहीं रही, वो आप ही की है। असवन ने अरहम की हल्की से चिपकते हुए रुका, तुम जब मेरी जगह आओगे ना तब तुम्हें इस बेताबी का अंदाजा होगा। अभी तुम बच्चे हो, जाकर बारात की तैयारी देखो। महानूर खालिद ने अपने लाडले बेटे के सर से सदका उतारा। अब बारात इंतहाई शान के साथ खान हवेली की तरफ रवाना हुई। ढोल की तेज थाप, शुरलियों और पटाखों की गूंज और कजन्स के भंगड़ों ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। जैसे बारात हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंची, फिरोज खान ने अपने बेटों शाहिद, अंसर और कैसर के हमरा आगे बढ़कर इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। जुनेद और मेहराब ने असफन के गले में गुलाब और मोतियों के फूलों की बाहरी हार पहनाए और हवेली की छत से लड़कों ने बारात पर गुलाब की पत्तियों की वो बरसात की कि पूरा सहन सुर्ख और गुलाबी रंगों से भर गया। बारात के बैठने का इंतजार लॉन में किया गया, जबकि निकाह की तकरीब हवेली के सबसे बड़े और हवादार तलान में मुनाकिद की गई। मौलवी साहब ने खुफिया खुतबा निकाह पढ़ाया और जब असफन से पूछा तो उसने इस कदर बुलंद और वाज़ेह अल्फाज में 3 बार कबूल है कहा कि पंडाल में बैठे सभी लोग बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। और हमने पीछे से आवाज़ लगाई कि भाईजान जरा आहिस्ता, हुमा बबी के कानों तक की आवाज़ पहुंचानी है, पूरे मोहल्ले को नहीं बताना। और इस पर एक जोरदार कहका गूंजा और दूसरी तरफ हुमा ने रोते हुए कांपते होठों के साथ जब कबूल है कहा तो उसकी सहेलियों और कजन्स ने उसे गले लगा लिया और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। छुहारे बांटे गए, मीडिया की तवासा की गई। निकाह के बाद वो मरहला आया जिसका घर के सभी नौजवान और बलखुसूस लड़कियों की शिद्दत से इंतजार था। असफन को दुल्हन के साथ बिठाने के लिए फूलों से सजे हुए मरकजी स्टेज पर लाया गया। हुमा जो पहले ही घबराहट का शिकार थी, असफन को अपने पहलू में बैठता महसूस करके मजीद सिमट गई। और असफन ने मुस्कुराते हुमा की तरफ देखा और सरगोशी में कहा कि आज तो तुमने वाकई ही मेरी जान निकाल दी हुमा। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल चाह रहा है कि अभी सबको यहाँ से निकाल कर तुम अपने साथ ले जाओ। हुमा ने शर्म से नजरें झुका ली और उसके रुखसार मजीद तहक उठे और जुरान कजन की टोलियों ने स्टेज को घेरना शुरू कर दिया। जूता छुपाई की रस्म के लिए फिजा ने एक मास्टर प्लान बना रखा था। उसने
शिजा और मिशाल को इशारा किया कि उस वन को बातों में लगाए। निशाल भाभी और शिजा ने आगे बढ़कर असफन को मुबारकबाद दी और इससे दुबई के किस्से पूछने लगी। असफन जो अपनी दुल्हन के पास बैठकर वैसे ही दुनिया से बेखबर हो रहा था, उनकी बातों में उलझ गया। यही वो सुनहरी मौका था जिसकी फिजा को तलाश थी। फिजा इंतहाई खामोशी और फुर्ती के साथ स्टेज के पीछे से होती असफन के पैरों के करीब पहुंची। उसने देखा कि असफन का दायां पैर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला है और खुसा ढीला है। फिजा ने रेंगते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, इंतहाई महारत से किसी को भी खबर किए बगैर असफन के पैर से जूता उतारा और अपने दुपट्टे में छुपाकर तेजी से पीछे की तरफ खिसक गई। इस सारी कार्रवाई में बमुश्किल सेकंड लगे और फिजा वहां से गायब होकर हवेली के अंदरूनी कॉरिडोर की तरफ भाग गई। और कुछ ही देर बाद जब असफन ने पहलू बदला और अपना पैर नीचे किया तो फर्श की ठंडक महसूस हुई। उसे चौंक कर नीचे देखा तो उसका एक जूता गायब था। असफन के मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे मेरा जूता! ये क्या रस्म है भाई, जूता छुपाएगी? मेरा जूता वापस करो यार। असफन की इस अचानक वार्ता की सबकी तवज्जो उसके पैरों पर गई और स्टेज पर खड़े सभी कजन्स हंसने लगे। अब असफन मुसलसल बोल रहा था कि अभी तो मैं बैठा हुआ हूं और तुम लोगों ने जूता भी गायब कर दिया। ये कैसी चालाकी है, लाओ मेरा जूता। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब हंस हंस कर दोहरा रहे थे। इसी हंगामे में अरहम जो स्टेज की दूसरी तरफ खड़ा था, उसे अपने भाई की परेशानी देखी तो फौरन आ गया। उसे फिजा को दूर से हवेली के अंदर भागते हुए दिख गया था। वो समझ गया था कि सारी शरारत उसी की है। अरहम ने बुलंद आवाज में कहा, भाईजान आप फिक्र न करें, आपका ये शेर दिल भाई अभी आपका जूता वापस ला कर देता है। इन लड़कियों को तो मैं अभी खबर देता हूँ। अरहम ये कहता हुआ फिजा के पीछे हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ा। फिजा जूता लिए हवेली की भलाई मंजिल के एक गेस्ट रूम की तरफ भागी थी। वो चाहती थी कि जूते को किसी ऐसी जगह छुपा दे जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, ताकि वो असफन से अपनी मर्जी की रकम वसूल कर सके। वो तेज तेज सांस लेती कमरे में दाखिल हुई और सीधी कमरे में मौजूद लकड़ी की एक पुरानी लेकिन खूबसूरत अलमारी की तरफ गई। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और जूता कपड़ों के पीछे छुपा दिया। वो सबसे छुप कर ये काम कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि हम उसके बिल्कुल पीछे कमरे में दाखिल हो चुका है। और जैसे ही फिजा ने जूता छुपाकर अलमारी का दरवाजा बंद करने के लिए पलटना चाहा तो अरहम जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, उसने तेजी से आगे बढ़ा कर जूता उसके हाथ से चिपट लिया। फिजा इस अचानक रफ्तार पर शौक में चली गई। वो घंग रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से भर गई जब उसे अपने सामने अरहम को एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जूता हाथ में लहराते हुए पाया। फिजा का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। उसने अपना दुपट्टा संभाला और आंखों में गुस्सा भरकर अरहम को घूरते हुए डिमांड की, अरहम शराफत से जूता मेरे वापस करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लड़कों का इस रस्म में कोई काम नहीं है, हमारा हक है। अरहम ने एक कदम पीछे हटाते जूते को मजीद ऊंचा करते शरारती अंदाज में कहा, पागल हूँ? पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जब मैं अपने भाई की इज्जत तुम्हें वापस कर दूं? ये जूता अब मेरे कब्जे में है और तुम लोग इस रस्म को भूल जाओ। फिजा को ये शिकस्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। वो तेजी से आगे बढ़ी ताकि अरहम के हाथ से जूता छीन सके। अरहम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिजा ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और अपनी पूरी जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करते उसे खींच कर इतनी जोर से दीवार के साथ लगाया कि अरहम के होश ही उड़ गए। अरहम जो कि एक मजबूत जसामत वाला और कदावर लड़का था, फिजा के इस अचानक और भरपूर हमले पर बिल्कुल ही बेबस हो गया और उसकी कमर जोर से दीवार से टकराई। फिजा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसे अभी तक अरहम का बाजू मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी तेज तेज चलती सांसें अरहम के चेहरे पर पड़ी थी। अरहम तो जैसे मुकम्मल तौर पर शौक में चला गया था। उसे फिजा को हमेशा एक शरारती, चुलबुली और लड़ाका कजन के तौर पर देखा था, लेकिन आज इस वक्त जब वो इस कदर करीब थी, उसकी हिजल रंगत की आंखों में मौजूद गुस्सा, उसके चेहरे की सुर्खी और उसकी सांसों की हदत ने अरहम के अंदर एक अजीब सा तूफान खड़ा कर दिया था। जिंदगी में पहली बार था कि वो दोनों यूं इतने करीब आए थे। कमरे की खामोशी में अरहम को सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन ही सुनाई दे रही थी। फिजा की आंखों में आंखें डाले अरहम जैसे दुनिया माफिया से बेखबर हो गया था। फिजा ने उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक देखी तो वो भी एक पल के लिए ठटक गई
اور اس کی گرفت ارحم کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ان دونوں کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی مقناطیسی کشش پیدا ہو چکی تھی۔ یہ ان دونوں کی وہ پیار بھری نوک جھوک تھی جس نے خاموشی میں ان کے دلوں کے تار چھیڑ دیے تھے۔ فضا نے دھیمی لیکن پر آواز میں کہا، جوتا دے دو ارحم۔ ارحم جو کہ دل ہی دل میں فضا کو بہت لائک کرتا تھا، اس کی اس قربت اور اس کی آنکھوں کی سحر میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اسے بنا کوئی بحث کیے رسور کا نواز میں جوتا فضا کے ہاتھ میں تھما دیا اور ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے مڑ گیا۔ فضا بھی اس کی اچانک ہتھیار ڈالنے پر حیران کھڑی اسے کمرے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا اپنا دل بھی کسی انجانے احساس کے تحت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فضا جوتا لے کر فاتحانہ انداز میں واپس سٹیج پر پہنچی۔ اسے جوتا ہوا میں لہراتے اعلان کیا کہ جوتا میرے قبضے میں ہے، اب اسفند بھائی کو پورے 2 لاکھ روپے دینے ہوں گے اور اسے 1 روپیہ بھی کم منظور نہیں ہے۔ اسفند نے غصے سے ارحم کی طرف دیکھا جو کہ ابھی تک خیالت میں گم مسکرا رہا تھا۔ اسفند بڑبڑایا کہ حد ہی ہو گئی ہے، میں اپنے بھائی کو بھیجا تھا اور وہ بھی ان لڑکیوں سے ہار کر آ گیا۔ سٹیج پر پیسوں کو لے کر ایک شاندار قسم کی بحث شروع ہو گئی تھی۔ کزنز کی نوک جھوک کہہ کے اور لڑکیاں اسفند کو بلیک میل کرنے لگی۔ آخر کار جنید اور اس کی بیوی سہرش نے مداخلت کی۔ جنید نے مسکراتے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی اور کہا کہ کوئی میری بہن کو تنگ نہیں کرے گا، یہ لو فضا 2 لاکھ کا چیک، اور میرے بھائی کو جوتا دے دو، بیچارہ کب سے ننگے پیر بیٹھا ہوا تھا۔ پیسے ملنے پر لڑکیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ فضا خوشی خوشی آگے بڑھی اور اسفند کے پیروں میں بیٹھ کر اسے جوتا پہنانے لگی، لیکن اسفند نے فوراً اپنے پیر پیچھے کر لیے اور انتہائی سنجیدگی اور احترام کے ساتھ فضا کو کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے منع کر دیا، پاگل لڑکی، میری چھوٹی بہن ہو، میری سالی ہو، تمہارا مقام بھی سر پر ہے، تم میرے پیروں میں نہیں بیٹھو گی۔ اسفند کی اس ممل نے وہاں موجود تمام بڑوں کے دل جیت لیے اور فراز خان کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ اسفند نے ارحم کو اشارہ کیا۔ ارحم جو کہ پہلے ہی تیار تھا فوراً ہی آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے فضا کو ہلکا سا سائڈ پر کیا اور خود جھک کر اپنے بڑے بھائی کو جوتا پہنایا۔ سب نے اسفند اور ارحم کے اس پیار اور احترام پر تھالیاں بجائی۔ شادی کی تمام رسمیں ہنسی خوشی ادا ہو گئی۔ رات کافی بیت چکی تھی اور اب وہ وقت آ گیا تھا جس کا ذکر سن کر ہی ہر بیٹی کے باپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے، رخصتی کا وقت۔ ہما جو اب تک ہنس کھیل رہی تھی، جب اپنے تایا فیروز خان اور اپنے کزنز کے گلے لگی تو اس کی چیخیں ہی نکل گئی۔ مہراب جو کہ اتنا سخت مزاج تھا، اس کی آنکھیں بھی اپنی چھوٹی بہن کو رخصت کرتے ہوئے نم ہو گئی۔ شیزا اور فضا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسفند نے انتہائی پیار اور عقیدت سے ہما کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا کہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ پھولوں سے سجی گاڑی میں جب ہما کو بٹھایا گیا تو خانہ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی اور خوشی کا ملا جلا احساس تھا۔ بہت دھوم دھام سے رخصتی ہوئی، گاڑیوں کا قافلہ ہارن بجاتا مسز مہنور خالد کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ خان بنگلے میں آج کی رات ہما اور اسفند کے لیے کس قدر زبردست ہنگامہ اور سرپرائز چھپائے بیٹھی ہے۔ وہ شرارت جس کی تیاری کزن نے پچھلے کئی دنوں سے کر رکھی تھی اور جس کا نشانہ بیچارہ اسفند بننے والا تھا۔ خان حویلی سے مسز مہنور خالد کے بنگلے تک کا سفر اگرچہ پیدل چلنے والوں کے لیے محض چند منٹوں کا تھا، لیکن آج کی رات یہ فاصلہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ بارات جب دلہن کو لے کر حویلی کے مرکزی دروازے سے نکلی تو ڈھول کی تھاپ، شرلیوں کی گونج اور کزنز کے کہکے نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا۔ مسز مہنور خالد کا بنگلہ اپنی تمام شان و شوکت اور جدید طرز تعمیر کے لیے آج کسی خوابوں کے محل کی طرح سجا ہوا تھا۔ پورے بنگلے کو برقی کمکموں، رنگ برنگی فیری لائٹس اور دبئی سے خاص طور پر منگوائے گئے ہائیڈر رجینا اور آرکیڈ کے پھولوں کے سجایا گیا تھا۔ جو ہی اسفند کی پھولوں سے لدی ہوئی بلیک رینج اور بنگلے کے شاندار آئینی دروازے کے سامنے رکی، مسز مہنور خالد نے خود آگے بڑھ کر اپنی بہو کا استقبال کیا۔ ان کے چہرے پر ممتا خوشی کا وہ ملا جلا تاثر تھا جو ہر ماں کے چہرے پر ہوتا ہے جس کا جوان بیٹا اپنی دلہن کو گھر لے کر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ انہوں نے ہما اور اسفند کے سروں پر صدقہ اتارا
उन पर गुलाब की पत्तियां निछावर की। फिर इंतहाई मोहब्बत से हुमा का हाथ थाम कर उसे घर के अंदर ले आई। बंगले के वसीर और इस लाउंज में खानदान के तमाम करीबी अफराद मौजूद थे। वहाँ हुमा को सोफे पर बिठाया गया। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। मिसेस महानूर खालिद ने आगे बढ़कर हुमा के घूंघट हल्का सा पीछे किया, उसके माथे पर प्यार किया, एक इंतहाई कीमती खालिस हीरे का सेट उसके गले में पहनाते उसे दुआओं से नवाजा। असलम के चेहरे पर फख्र और खुशी दी गई थी। उसके बाद दूध पिलाई और आईना देखने की छोटी मोटी रवायती रस्में अदा की गई, जिसमें कजन्स ने एक बार फिर हंगामा खड़ा किया और असलम की जेब खूब हल्की की गई। इन तमाम रस्मों पर ये रूसी जोड़े 15 किलो के लहंगे और सर पर मौजूद भारी जेवरात और पिछले कई दिनों की थकावट ने हुमा का बुरा हाल कर दिया था। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और उसका बसले नहीं चल रहा था कोई किसी तरह इस भारी लिबास से जान छुड़ाए और किसी नरम बिस्तर पर गिरकर सो जाए। हुमा की हालत देखकर मिसेस महानूर ने घर की सबसे पुरानी और वफादार मुलाजमा शम्मो मासी को आवाज दी और कहा कि वो बहुत थक गई है, इसे फौरन ऊपर असलन के कमरे में ले जाओ ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। शम्मो मासी ने नहायत अदब से हुमा का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देते बगले की भलाई मंजिल की तरफ ले जाने लगी, जहाँ असवंत का मास्टर बेडरूम था। घर का तरफ कमरे का दरवाजा खुलते सूरज गुलाबों मोतियां और मस्क की इंतहाई मशहूर कन और दिलफरेब खुशबू ने हुमा का इस्तकबाल किया। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा था। बेड के बीचों बीच गुलाब की पत्तियों से एक बहुत बड़ा दिल बनाया गया था। छत से फूलों की लड़ियां लटक रही थी और चारों तरफ रखी खुशबूदार मोमबत्तियां कमरे में की इंतहाई रोमानवी और मध्यम सी रोशनी बिखेर रही थी। शम्मू मासी ने हुमा को कमरे के अंदर छोड़ा और दरवाजा बंद करके चली गई। हुमा ने गहरा सांस लिया। उसे कमरे की खूबसूरती को सराहने की बजाय सबसे पहले अपने पैरों से वो ऊंची हील वाली गोल्डन सैंडल उतारी, जिसने पिछले 6 घंटों से उसके पैरों का खून खुश्क कर दिया था। वो लड़खड़ाती हुई बेड की तरफ पड़ी, लेकिन बेड के बीचों बीच सजे हुए फूलों को खराब करने के बजाय वो बेड के बिल्कुल किनारे फूलों से बचते अंधे मुंह लेट गई और आंखें बंद कर दी। अभी उसे लेटे हुए बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि कमरे का दरवाजा इंतहाई आहिस्तगी से और बगैर किसी आवाज के खुला। हुमा ने सोचा कि शायद असफल आ गया है। उसने घबरा कर उठने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे से दाखिल होने वाला असफल नहीं, बल्कि तूफानों की वो पूरी फौज थी जिसका नाम कजन्स था। फिजा, शिजा, मिशाल, उन सबका सरगना अरहम इंतहाई दबे कदमों बिल्लियों की तरह कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर इंतहाई खतरनाक और शरारती मुस्कुराहटें थी। हुमा ने देखकर पड़ा कर उठ बैठी और आंखें फाड़ कर उनकी तरफ देखने लगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और अरहम, तुम तो बाहर जाओ। दुल्हन के कमरे में तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी और तुम्हारी दोनों की शर्मत आ जाएगी। हुमा ने घबराहट और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ सरगोशी करते हुए कहा। फिजा ने आगे बढ़कर हुमा के मुंह पर हाथ रखा और बोली, "श्श, चुप कर जाओ दुल्हन रानी। आज की रात इतनी आसानी से नहीं गुजरने वाली। असफन भाई ने जूते के पैसे देने में जो नखरे किए थे ना, आज हम उसका सूद समेत बता लेंगे। बस तुम चुपचाप बैठी रहो और हमारे साथ चलो।" हुमा ने मजामत करने की कोशिश की। पागल हो गए हो तुम लोग? मैं की जा रही, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सोने दो। लेकिन कजन्स की उस टोली के सामने हुमा की एक न चली। विशाल और शिजा ने आगे बढ़कर हुमा को बाजू से पकड़ा और उसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे से मुतसिल एक बड़ी और तारीक ड्राइंग रूम की तरफ ले गई। हुमा के जाने के बाद कमरे का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। अरहम और फिजा ने संभाल लिया। अरहम, जिसने अभी तक अपनी शेरवानी उतारी भी नहीं थी, बैठ के करीब आया। इंतहाई डरावना अंदाज में बोला, आज मैं असफन बाई की दुल्हन बनूंगा। फिजा, जरा मेरा घूंघट तो सेट करो, और वो लाल वाला लिपस्टिक का है जो तुम खास तौर पर मेरे लिए लाई थी। फिजा ने हंसी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अपने पर्स से एक इंतहाई शोक और गहरे रंग की ब्लड रेड लिपस्टिक लगा निकाली और हमने बेड के साइड टेबल पर रखे आईने के सामने खड़े होकर इंतहाई महारत और नखरे से अपने होंठों पर सिर्फ लिपस्टिक रगड़नी शुरू कर दी। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी, मर्दाना नकोश और उस पर ये शोक सिर्फ लिपस्टिक के सहरा ऐसा भयानक और मसाया इम्तजाज पैदा कर रही थी कि फिजा और बाकी लड़के जो कि ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से झांक रही थी, हंस हंस कर दूरी हो गई। लिपस्टिक लगाने के बाद हमने अपनी जेब से एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लॉलीपॉप निकाला और उसका रैपर उतार कर उसे अपने मुंह में रख दिया।
अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ज़रा वो हुमा भाभी का एक्स्ट्रा दुपट्टा तो मेरे सर पर डाल दो। अहम ने अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में कहा, जिसे वो बारीक करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिजा ने आगे बढ़कर एक भारी सुर्ख रंग का कामदार दुपट्टा अहम के सर पर डाला और उसे बेड के बिल्कुल दरमियान में फूलों के उस दिल के अंदर बैठा दिया जहाँ हुमा को बैठना था। हमने दुपट्टे को इस तरह नीचे खींचा कि उसका चेहरा बिल्कुल छुप गया, सिर्फ उसके हाथों की उंगलियां ही नजर आ रही थी, जिस पर लड़कियों ने जबरदस्ती मेहंदी के कुछ निशानात लगा दिए थे। ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद बजाय उसके कि कजल की फौज कमरे से बाहर निकलती, उन्होंने वहीं छुपने का फैसला किया। फिजा और शिजा तेजी से खिड़की के भारी और मखमली पर्दों के पीछे छुप गई, जबकि मिसाल ड्रेसिंग रूम में हुमा के पास चली गई और दरवाजे को जरा सा खुला छोड़ दिया ताकि वो बाहर का सारा तमाशा दिख सके। पूरा कमरा एकदम पुरसुकून और खामोश हो गया, जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है। और दूसरी तरफ बंगले के निचले हिस्से में असफन को उसके दोस्तों और कजन्स थे, जिसमें जुनेद और मेहराब भी शामिल था, लाहौज में ही घिरा हुआ था। असफन बार बार अपनी घड़ी की तरफ भी देख रहा था। उसकी इस बेताबी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। यार जुनेद भाई, रात ही 2 बज रहे हैं, अब तो मुझे जाने दे, मैं सुबह का थका हुआ हूँ, कर गलीमे की तैयारी भी तो करनी है ना। असफन ने झिझलाते हुए कहा, लेकिन जुनेद जो कि सारी साजिश में लड़कियों के साथ मिला हुआ था, दाई संजीदगी से बोला, अरे असफन मियाँ, ठीक है, जल्दी है, ये रातें बार बार थोड़ी ना आती हैं, ज़रा बैठो हमारे पास। हम तुम्हें इज़्वाजी ज़िंदगी के कुछ इंतहाई अहम और खुफिया गुर बताना चाहते हैं, जो कि दुबई में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मेहराब जो कि आमतौर पर बहुत कम मुस्कुराता था, आज भी उस फिल्म की बेबसी का मज़ा ले रहा था। उसने लुकमा दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनेद भाई, और वैसे भी तुमने हमारी बहनों को जूता छुपाई में बहुत तंग किया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। असफर ने हार मानते हुए सोफे से टेक लगा ली और दिल ही दिल में उन सबको कोसने लगा। उसे क्या मालूम था कि असल सज़ा तो ऊपर उसके बेडरूम में उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तकरीबन आधे घंटे की मजीद ज़हनी असियत और दोस्तों की फजूल मशवरे सुनने के बाद आखिरकार असफर को रिहाई मिली। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता भलाई मंजिल की तरफ आया। उसके कदमों में एक अजीब सी इज्जत और दिल में एक मीठी सी धड़कन थी। कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए रुककर एक गहरा सांस लिया, अपने बालों में हाथ फेरा, शेरवानी की बटन दुरुस्त किए और फिर इंतहाई आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कमरे की मध्यम रोशनी, गुलाबों की महक और बेड के बीचों बीच सुर्ख जोड़े में सिमटी हुई दुल्हन को देखकर असफन की सारी थकावट, सारा गुस्सा एक सेकंड में हवा हो गया। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, कमरे के वस्त में आ गया। पर्दों के पीछे छुपी फिजा और शिजा ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए ताकि उनकी हंसी की आवाज़ बाहर न निकल जाए। और सफन बेड के करीब आया। उसका मूड अब इंतहाई रोमांचक हो चुका था, लेकिन अचानक उसे जूता छुपाई वाली रस्म और अपने 2 लाख रुपए याद आ गए। उसने सोचा कि हुमा को थोड़ा सा छेड़ना तो बनता है। सफन ने बेड पर बैठते पहले अपनी भारी शेरवानी उतारी और उसे पास रखे सोफे पर फेंक दिया। फिर इंतहाई रोबदार और डरावनी अंदाज में चलता बेड के किनारे पर दुल्हन के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और बुड़बुड़ाता हुआ, लेकिन इतनी आवाज में कि दुल्हन सुन सके, बोलना शुरू किया कि क्या रस्म है भाई, जूता छुपाई की, हद हो गई है। तुम लड़कियों ने तो मुझे लूट लिया है। मेरा जूता वापस करने के नाम पर सिर्फ जूते का 2 लाख रुपए ले लिया मुझसे। और तुम भी उनके साथ मिली हुई थी। बड़ी मासूम बनती हो, लेकिन मुझे पता है वो सारा मास्टर प्लान ना तुम्हारा ही था। तुम और फिजा ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। असलम की आवाज़ में गुस्सा कम और शरारत ज़्यादा थी। दुल्हन मुसलसल खामोश बैठी रही, सिर्फ उसका सर हल्का सा झुका हुआ था। असलम ने मुस्कुराते अपना चेहरा दुल्हन के करीब किया। अब उन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। लेकिन कोई बात नहीं बेगम साहिबा, जो दिया है ना मैंने, वो 2 लाख रुपए, और वो सब मैं तुमसे वसूल भी करूंगा, और वो भी सूद समेत। तैयार हो जाओ अपने इस जला चोर का सामना करने के लिए। ये कहकर असफर ने इंतहाई नरमी और रोमानवी अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया और दुल्हन के चेहरे पर पड़ा हुआ वो बाहरी सूरख घूंघट आहिस्ता से उलट दिया। घूंघट उलटते ही जो मंजर असफर की आंखों ने देखा, वो किसी भी इंसान का हार्ट अटैक करवाने के लिए काफी था। असफर का जैसे तरह ही निकल गया। उसकी जेन में हुमा का वो शर्माता हुआ हया से सुर्ख चेहरा,
आया था। लेकिन सामने सामने तो अरहम बैठा हुआ था। अरहम जिसकी दाढ़ी के बाल साफ नजर आ रहे थे, जिसके होंठों पर इंतहाई भोंदे अंदाज में ब्लड रेड लिपस्टिक फैली हुई थी, जिसने आंखों की एक अजीब सा मटकाया हुआ था, वो जो अपने मुंह में स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप दबाए इंतहाई बेशर्मी और डिठाई के साथ असवन को देखकर शर्मा रहा था। असवन की आंखें हैरत और सदमे से इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर निकल आएंगी, और उसे हलक से एक अजीब सी खौफजदा चीख निकली, या अल्लाह। वो एकदम झटके से पीछे की तरफ पलटा। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और बेड से सीधा नीचे जमीन पर रखे कालीन पर जा गिरा। तुम ये कौन सी मखलूक हो? असफल ने फर्श से उठते विजय की तरफ किसने हकलाते हुए कहा। पर्दों के पीछे और ड्रेसिंग रूम में छुपे हुए कजन्स का ये हाल था कि उनके पेट पे हंस हंस कर अब पल पड़ चुके थे। फिजा ने शीजा को चुटकी काटी ताकि वो अपनी हंसी की आवाज को कंट्रोल कर सके, लेकिन असफल का गिरा हुआ चेहरा और अरहम की वो शक्ल देखकर हंसी को रोकना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। अरहम ने लॉलीपॉप मुंह से निकाला और से अपने होंठों के करीब लहराते हुए इंतहाई बारीक सुरीली जानबूझकर बनाएगी नस्वानी आवाज में बोला, जानम आप इतनी दूर क्यों जा गिरे? मैं तो आपकी वही हुमा हूं ना। आपने कहा था ना कि आप सूद समेत सारे बदले लेने को तैयार है, तो मैं तो हाजिर हूं ना। मेरे सरताज आए, मुझे अपना सारा बदला सूद समेत वसूल करे। पास आए ना। और हमने आंख मारते अपने होंठों को पाउट करते वो जुमला इतनी बेशर्मी से अदा किया कि असफन का खून ही खौल उठा। असफन जो अभी तक सदमे की हालत में था, अब शदीद गुस्से और खफत का शिकार हो गया था। उसका चेहरा जो पहले ही खुशी से दमक रहा था, अब शर्मिंदगी और गुस्से से लाल भभूका हो गया था। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये क्या बेहुदा मजाक है? और तुम और हम, तुम्हें तो अल्लाह पूछे, तुमने अपने बड़े भाई के साथ ये हरकत कर रहे हो। तुम्हारी तो मैं अब भी हड्डियां तोड़ता हूँ। असफन गुस्से से जच होता दूर जा खड़ा हुआ और उसने करीब पड़ा हुआ एक कुशन उठाकर अरहम की तरफ खींच कर मारा, जो कि अरहम ने हंसते हुए कैच कर लिया। और इसी दौरान कमरे की खामोशी में फिजा को किसी के हंसने की दबी दबी सी आवाज आई। उसे चौंक कर पर्दों की तरफ देखा जहां से हिलने की आवाज आ रही थी। इससे पहले कि असफन आगे बढ़कर पर्दे हटा था, फिजा और शीजा से मजीद सब्र ना हो सका और वो जोरदार कहके लगाती पर्दे के पीछे से बाहर आ गए। उनके साथ ही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और मिशाल भी हंसती हुई बाहर आई। पूरा कमरा उनकी हंसी और कहकों से गूंज उठा और असफन उन्हें देखकर हैरान भी था और गुस्से में। अच्छा, तो ये सब तुम सबकी साजिश थी? तुम सब इसके साथ मिले हुए थे? निकलो मेरे कमरे से बाहर, अभी और इसी वक्त। वो इन सबको बाहर निकालने के लिए और उनकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला, जिसे असफन ने लॉक किया हुआ था। किसी ने बाहर से चाबी से खोला था। दरवाजा खुला और सामने मिसेस महानूर खालिद खड़ी थी, जिनकी नींद इस शोर शराबे और कहके की वजह से टूट गई थी। महानूर खालिद को दरवाजे पर खड़ा देख सब कजन की हंसी एकदम रुक गई और कमरे में जैसे सुन्नाटा छा गया। महानूर की नजरें बेड पर पड़ी तो उनका भी मुंह खुले का खुला रह गया। उनका लाडला और छोटा बेटा अरहम लिपस्टिक लगाए, सिर पर दुपट्टा ओढ़े, हाथ में लॉलीपॉप पकड़े बेड पर बैठा था। एक सेकंड के लिए तो उन्हें समझ ही ना आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अगले ही लम्हे सूरत हाल का इदराक होते वो खुद भी मुस्कुरा दी। लेकिन फौरन ही चेहरे पर संजीदगी तारी करते वो सीधी अरहम की तरफ बढ़ी। अरहम ने अपनी माँ को गुस्से में आते देखा तो उसकी जान ही जैसा निकल गई। बहानूर खालिद ने आगे बढ़कर अरहम का कान इतनी जोर से खींचा कि वो आउच करता हुआ बेड से नीचे आ गया। ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने? तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं? भाई की सागरात है और तुम दुल्हन बने बैठे हो, बेशर्म इंसान। बहानूर ने अरहम का कान मरोड़ते हुए उसे डांटा। अरहम जो कि पैदाइशी डरामेबाज था, उसे फौरन रोना धोना शुरू कर दिया और अपनी माँ के पीछे छुपने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, अम्मा मुझे बचाए, ये असफन भाई की नीयत मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तो अभी यही चाहिए। असफन भाई यही कह रहे थे कि वो उसके साथ शागरात मनाएंगे और मुझसे सूद समेत 2 लाख भी वसूल करेंगे। मेरी इज्जत खतरे में है मामा, मुझे ना बचाओ। अरहम की इस बात पर महानूर भी अपनी हंसी न रोक सकी और बाकी कजन्स का भी तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। असफन जिसका रुख अरहम की तरफ था तो गुस्से से आगे बढ़ा, बकवास बंद करो अपनी, तुम तो मेरे हाथों से बचोगे नहीं आज। अरहम ने सूरत हाल को अपने लिए खतरनाक पाया तो फौरन से
अपने सर से वो भारी दुपट्टा वहीं फर्श पर फेंका और महानूर को चकमा देता, छलांगे मारता कमरे से बाहर भाग गया। और उसके पीछे पीछे फिजा और बाकी लड़कियां भी हंसती हुई भाग गई। और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी हुमा, जो कि सारा मंजर देख रही थी, वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। असवन की बेबसी और हम का ड्रामा और मिसेस महानूर की डांट, ये सब इतना मजाहिया था कि हुमा की आंखों में हंसते हंसते आंसू आ गए थे। मिसेस महानूर ने हुमा को देखा तो प्यार से मुस्कुराई, फिर असवन की तरफ मुड़कर बोली, तुम इन पागलों की बातों में मत आना, मैंने नीचे जाकर सीधा करती हूँ, तुम लोग आराम करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अब उस बेड पर रूम की तन्हाई में सिर्फ असवन और हुमा रह गए थे। हुमा हंसती हुई आगे बढ़ी, अपने चेहरे को हाथों से छुपाने लगी। असवन ने एक लंबा सांस लिया और वहीं सोफे पर बैठकर हुमा को देखने लगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और हुमा को लग रहा था कि अब असवन नाराज होगा और गुस्सा भी करेगा। लेकिन असवन की नजरों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी सोच और शक था। वो कुछ पल के लिए हुमा को सर से लेकर कर पैर तक क्यों ही देखता रहा। उसका दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। वो सदमा इतना गहरा था कि उसे हर चीज पर शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि अभी भी कुछ गड़बड़ है और उसके जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं हुमा का कोई रूप तो नहीं, शायद उन्होंने कमरे में कोई नया जाल बिछाया हुआ हो। असमन ने आंखें सुखेड़ी और हुमा की तरफ देखते ही इंतहाई मशकूक अंदाज में अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मुड़ पड़ा है। पहले मैं चेक करूं, कहीं इन खबीसों ने इस कमरे में कोई कैमरा तो फिट नहीं कर रखा। और ये कहते हुए उसने सोफे से उठा और कमरे के चारों तरफ, खासतौर पर पर्दों और इसी की तरफ यूं देखने लगा जैसे कोई सीआईडी का इंस्पेक्टर सुराग ढूंढ रहा हो। हुमा उसकी ये मशकूक और घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। असलम की आंखें कमरे के हर कोने, हर पर्दे, एसी की ग्रिल और यहाँ तक कि छत पर लगे हुए खूबसूरत फानूस को भी इंतहाई बारीक बीनी से जायजा ले रही थी। बेड के बिल्कुल दरमियान में सूरज गुलाब की पत्तियों से बने दिल के पास खुली खड़ी जिले हुमा, जो कि अभी अपनी भारी अरूसी दुपट्टे को साइड पर कर चुकी थी, अपने शोर की इस मशकूक और घबराई हुई हालत को देखकर मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। असमन की मुसलसल कमरे का निगाहें तवाफ कर रही थी। उसे झुककर बेड के नीचे झांका, फिर उठकर खिड़की के उन भारी मखमली पर्दों को झटका, जैसे जहाँ कुछ देर पहले फिजा और शिजा छुपी थी। उसे लग रहा था कि कहीं इस कमरे में किसी खुफिया कोने में कोई कैमरा तो फिट नहीं, कि कहीं से कोई कजन निकल कर दोबारा कोई नया बम गिरा दे। उमा से मजीद चुप न रह गया। अपना भारी और उसी जोड़ा को संभालती इंतहाई नजाकत और धीमे कदमों के साथ असवन की तरफ बढ़ी। असवन जो उस वक्त साइड टेबल पर रखे लैंप को उलट पुलट करके चेक कर रहा था, हुमा की पायलों की छन छन सुनकर एकदम चौंका। वो पीछे 2 कदम हट गया। हुमा ने अपनी बड़ी बड़ी गोलाफी आंखों में शरारत ली था, इतरा कर एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, ये मैं ही हूँ, आपकी हुमा, सच्ची वाली हुमा। अब हम यहाँ नहीं है, वो तो आंटी के डर से भाग गया। हुमा की इस मीठी और खनकती हुई आवाज ने असलम के दिल में एक जादू सा कर दिया। लेकिन पिछले आधे घंटे के वाकयात ने उसके अंदर का सारा रोमांस फिलहाल शक के पर्दों में छुपा दिया था। असलम ने आंखें सुखेरी और हुमा को सर से लेकर पैर तक घूरते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और इंतहाई संजीदगी से बोला, मुझे पहले चेक कर लेने दो कि इस कमरे में कोई कैमरा तो फिट नहीं है। मुझे तो लोगों से पर जरा भी एतबार नहीं रहा। और तुम इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम इन खबीसों के साथ मिली थी, मुझे तुम पर भी बिल्कुल शक नहीं। अगर तुम सच्ची वाली हुमा होती तो कम से कम मुझे इशारा ही कर देती कि अंदर मेरे लिए क्या सरप्राइज छुपा कर रखा है। असफर ने मुंह बनाते हुए अपने गुस्से और खफकी का इजहार किया। हुमा ने भी सख्त आगे बढ़कर असफन का बाजू पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी बिल्कुल करीब किया। असफन जो अभी तक पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, हुमा की इस अचानक गुर्बत पर बिल्कुल साकित रह गया। हुमा के अरूसी जोड़े से उठने वाली मस्क की खुशबू और उसकी गुर्बत ने असफन के सारे शक और गुस्से को पिघलाना शुरू कर दिया। हुमा ने इंतहाई मासूमियत से अपने चेहरा असफन के चेहरे के करीब किया और नम लहजे में बोली, आई एम सॉरी असफन, सच में मेरा इस साजिश का मैं कोई याद नहीं था। सब अचानक तूफान की तरह कमरे में आ गए और मुझे वहां से उठाकर जबरदस्ती ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया।
फिज़ा ने तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया था, वरना मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देती कि अंदर आपकी सौगात मनाने के लिए अरहम भाई लिपस्टिक लगाए बैठे हैं। हुमा की इस बात पर हसवन के होठों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने खुद को फौरन संजीदा कर लिया ताकि वो अपने रोब को बरकरार रख सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है और तुम वाकई इस साजिश में शामिल नहीं थी तो मुझे फिर सबूत दो, मुझे ऐसे यकीन नहीं आएगा। असफर ने अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी करते एक कदम और हुमा के करीब किया। हुमा ने हैरत से पूछा, कैसा सबूत और मैं क्या कह सकती हूँ? असफर की आंखों में गहरी और शरारती चमक उभरी। उसने हुमा की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू का हिसार बनाते उसे मुकम्मल तौर पर अपने साथ लगा लिया। उन दोनों के दरमियान अब हवा का गुजर भी मुमकिन नहीं था। असफर ने हुमा की आंखों में आंखें डालते सरगोशी के अंदाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे किस करो, फिर ही मुझे यकीन आएगा ना कि कोई ख्वाब नहीं है और मेरे सामने वाकई मेरी दुल्हन खड़ी है। असफन के इस अचानक मुतालबे पर हुमा का पूरा चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गई और उसे घबरा कर अपनी नजरें झुका ली। लेकिन असफन की गिरफ्त उसकी कमर पर बहुत मजबूत थी और वो उसकी आंखों में एक अजीब सी तलब दिख रही थी। हुमा ने कांपते हाथों से असफन की वो दोनों आंखों पर अपनी नरम नाजुक हाथ रखे ताकि उसकी तरफ ना देख सके। अपने इंतहाई तेजी से किसी डरपोक चिड़िया की तरह असफन के गाल पर अपने होंठ रखते एक इंतहाई हल्का और मासूम सा लम्स जो बमुश्किल 1 सेकंड का था। खिसकने के बाद हुमा ने अपने दोनों हाथ असफन की आंखों से हटा दिए और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन असफन ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। असफन के चेहरे पर एक इंतहाई दिल फरेब और दिलकश मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने हुमा की ठोड़ी को अपनी उंगली से छुआ और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए इंतहाई प्यार और मेंस में डूबी आवाज में बोला, ये क्या था? मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुमने गाल पर चूमकर बहला दिया हो। दोनों मियाँ बीवी हो माँ, मुझे हस्बैंड वाइफ वाली किस करो। असफर ने अपनी आंखों से अपने होंठों की तरफ इशारा करते वो बात इतनी मोहब्बत और हक से गई कि हुमा के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही न रही। उस रात असफर और हुमा के दरमियान होने वाली तमाम प्यारी बातें, वो रूठे हुए शिकवे, मुंह दिखाई के तहाइफ उनकी जिंदगी की एक ऐसी हसीन और मीठी याद बन गए जिसे वो दोनों कभी फरामोश नहीं कर सकते थे। अगली सुबह खान हवेली और मिसेस महानूर के बंगले में एक बार फिर वही गहमा गहमी, वही शोर शराबा, वही कजिन्स की शरारतें अरूज पर थी। रात की उन तमाम कार्रवाई के बाद आज जब असफन लाउंज में आया तो आराम को देखते उसने उसे मारने के लिए जूता उठा लिया, जिस पर पूरे घर में कह तो कहीं तूफान बर्पा हो गया और हम मुसलसल सोफों के पीछे भागता रहा और अपनी सफाइयाँ देता रहा कि भाई मैं तो सिर्फ आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए कोशिश कर रहा था। आज असमत और हुमा का वलीमा था। इस तकरीब के लिए शहर का सबसे महंगा और शानदार 5 स्टार होटल बुक किया गया था। शाम होते ही फैमिली के तमाम अफराद होटल के उस अजीम शान हॉल में जमा होना शुरू हो गए थे। होटल का हॉल इंतहाई नफासत से क्रिस्टल के फानूसों, सफ़ेद और सुनहरे रंग के फूलों और शानदार रोशनियों से सजाया गया था। हुमाद सिल्वर और ग्रे रंग की इंतहाई खूबसूरत और कीमती मैक्सी नुमा और उसी लिबास में मलबूस थी जिसके साथ उसने हीरो को वो सेट पहना हुआ था जो मिसेज महानूर ने उसे मुंह दिखाई में दिया था। असफन रंग के 3 पीस सूट में उसके साथ खड़ा किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं लग रहा था। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें बनाने का रश भी लगा हुआ था। पूरे खानदान के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और तमानियत थी। लेकिन कजन्स की वो टोली जिसने पिछले कई दिनों से घर को सर पे उठाया हुआ था वो आज कुछ ज्यादा ही पुरसुकून लग रही थी। शिजा, फिजा, मिशाल और आराम सब एक ही मेज पर बैठे हुए थे और बार बार स्टेज की तरफ देख रहे थे। दरअसल आज की रात सिर्फ असफल और हुमा के लिए वलीमे की नहीं बल्कि खानदान के बुजुर्गों ने मिलकर एक ऐसा फैसला कर लिया था जिसकी भनक घर के बच्चों को बिल्कुल नहीं थी। फिरोज खान जो कि खानदान की के सरबराह थे, उन्होंने शाहिद, अंसर, कैसर और महानूर खालिद के साथ मिलकर रात को एक अहम मीटिंग की थी। जब वलीमे का खाना खुल गया और मेहमान खानों से फारिग होने लगे तो फिरोज खान अपनी मखसूस रोबदार और पुरवकार चाल चलते स्टेज की तरफ बढ़े और उन्होंने माइक अपने हाथ में ले लिया और पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें फिरोज खान की तरफ मरकूज हो गई।
फिरोज खान ने माइक को दुरुस्त किया, गला साफ किया और अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे अजीज रिश्तेदारों और मेहमानों, आज हम सब यहाँ मेरे पोते असफंद और जिले हुमा की शादी की खुशी में जमा हुए हैं। ये हमारे खानदान के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। लेकिन आज की शाम ये तकरीब सिर्फ एक खुशी तक महदूद नहीं रहेगी। मेरे और मेरे तमाम भाइयों ने और महानूर ने मिलकर ये फैसला किया कि आज इसी मुबारक महफिल में अपनी फैमिली की एक और खुशी का एक बाकायदा तौर पर ऐलान और आगाज किया जाए। फिरोज खान की इस बात पर पूरी हॉल में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। कजिन्स के मुंह पर मेज पर बैठे अरहम और फिजा ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। महराब जो कि पास ही खड़ा था, उसके माथे पर भी सिलवटें पड़ गई। फिरोज खान ने मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे खड़े अपने बेटों की तरफ देखा, फिर दोबारा माइक पर बोले, हमने ये तय किया है कि हम आज ही के दिन इसी तकरीब में अपने खानदान के 2 और बच्चों को निकाह के पाकीज़ा बंधन में बांध देंगे। और ये बच्चे मेरी सबसे छोटी और लाडली भतीजी फिजा और मेरा शरारती नवासा अरहम खालिद है। ये ऐलान सुनना था कि जैसे पूरे हॉल में एक बम फट गया। सबसे ज्यादा शौक अगर कोई था तो वो अरहम और फिजा ही थे। अरहम जो कि पानी का गिलास पी रहा था, उसे ऐसा फंदा लगा कि वो खांसते खांसते दूरा हो गया, जबकि फिजा की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसके हाथ से कांटा छूटकर प्लेट पर गिरा, जिसकी जोरदार आवाज गूंजी। दोनों की आंखें हैरत से पूरी तरह खुली की खुली रह गई और उनके चेहरों के तासुरात ऐसे थे जैसे उन्होंने किसी बिजली का झटका दे दिया हो। ये मामा ने क्या कर दिया? अरहम ने हकलाते हुए मिसाल की तरफ देख कर कहा। और दूसरी तरफ फिजा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था और उसे जमीन अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई महसूस हो रही थी। और इससे पहले कि वो दोनों कोई रद्द अमल देते, जुनैद और मेहराब आगे बढ़े। मेहराब, जिसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, उसने अरहम को बाजू से पकड़ा और बोला, चलो भाई छोटे दुल्हा, कल रात तुम दुल्हन बने हुए थे ना, आज तुम्हें असल में दुल्हा बनाते हैं। जुनैद ने फिजा के सर पर प्यार से हाथ रखा और मस्तूरात को इशारा किया कि फिजा को स्टेज के पास लेकर आए। और सब इस कदर अचानक और सरप्राइजिंग था कि किसी को भी संभलने का मौका ही ना मिला। मौलवी साहब को पहले ही बुला कर रखा गया था। अरहम को स्टेज पर असद के बिल्कुल सामने बिठा दिया गया और फिजा को हुमा के पहलू में जगह दे दी गई। अरहम बार बार अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन महानूर खालिद की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो मुस्कुरा रही थी। निकाह का खुतबा शुरू हुआ। जब अरहम से कबूल है पूछा गया तो उसने एक नजर फिजा की तरफ डाली, जिसकी शर्म से दूरी हो रही थी। कल रात जूते छुपाई के दौरान उन दोनों के दरमियान जो एक खामोश सी कशिश पैदा हुई थी, वो आज इस कदर जल्दी एक रिश्ते में बदल जाएगी, उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरहम ने एक लंबी सांस ली और दिल की गहराइयों से निकली एक पुरजोश आवाज में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और दूसरी तरफ फिजा ने रोते और शर्माते लहरती आवाज में जब अपनी अपनी रजामंदी जाहिर की तो पूरे हॉल में मुबारकबादों का शोर मच गया। असद ने जोरदार कहका लगाया और अरहम के गले लगकर बोला, मुबारक मेरे भाई, अब आए हो तुम भी लाइन पर। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे शरारतें करते हैं। निकाह की रस्म मुकम्मल होने के बाद फिरोज खान ने एक बार फिर से माइक संभाला और मुस्कुराते हुए ऐलान किया, और हाँ, एक और खुशखबरी है। आज से ठीक 2 माह बाद हम अपनी हवेली में एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे, क्योंकि 2 माह बाद हम फिजा और अरहम की और साथ ही साथ मेहराब और शिजा की डबल रुखसती करेंगे। और ये दूसरा धमाका था जिससे शिजा के होश उड़ाते हैं। शिजा जो कि अभी तक फिजा की शादी पर तालियां बजा रही थी, उसका रंग एकदम फक पड़ गया। उसे मुड़कर दूर खड़े मेहराब की तरफ देखा। मेहराब जो आमतौर पर सख्त मिजाज था, आज उसके होंठों पर इंतहाई प्यारी पुरकशिश मुस्कुराहट थी। शिजा की घबराहट को देखकर अब लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुछ देर के बाद जब ब्रश कदरे कम हुआ, मेहराब चलता हुआ शिजा के करीब आया। शिजा घबरा कर पीछे हटने लगी, लेकिन मेहराब ने दीवार पर हाथ रखकर उसका रास्ता रोक लिया। क्या हुआ मोहतरमा, रंग क्यों उड़ा हुआ है आपका? खुशी नहीं हुई ये ऐलान सुनकर? मेहराब ने अपनी गर्जदार लेकिन धीमी आवाज में पूछा। शिजा ने नजरें झुकाते हकलाते हुए जवाब दिया, वो नहीं, वो तो अचानक तायजान ने कह दिया तो मैं। मेहराब ने उसकी बात काटते इंतहाई नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, सिर्फ 2 महीने शिजा, सिर्फ 2 महीने का इंतजार हो रहा है।
उसके बाद तुम्हें मुझसे, मेरे गुस्से से या मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँगा और तुम सिर्फ़ मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा आपकी इस प्यार भरी बात ने शीज़ा के दिल में मौजूद उसके लिए सारे खौफ को एक पल में मिटा दिया। उसे शर्मा कर मेहराब की तरफ देखा। उसके गालों पर हया की सुर्खी छा गई। ये उन दोनों का एक ऐसा प्यारा सीन था जिसने उनके रिश्ते की एक नई बुनियाद रखती थी। दूसरी तरफ अरहम और फिज़ा की खट्टी मीठी नोक-झोंक छाड़ी थी। अरहम स्टेज के पीछे फिज़ा को अकेला पाकर उसके करीब आया। फिज़ा का रंग जो अभी तक सुर्ख था उसने अरहम को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अरहम ने शरारती अंदाज में खनकारते हुए कहा, क्यों भाई मिसेज अरहम खालिद, कैसा लगा मेरा ये मास्टर स्ट्रोक? तुम तो समझ रही थी कि कल रात जूता छीनकर तुमने जंग जीती है, लेकिन देखो मैंने तो तुम्हें हमेशा के लिए छीन लिया। अब तो तुम ऑफिशियली मेरी हो गई हो। और हाँ, जूते के साथ वो जो 2 लाख रुपए तुमने मुझसे लिए थे ना, वो अब हमारे जॉइंट अकाउंट में जाएंगे। और याद रखना, अरहम की इस लिटाई पर फिजा को गुस्सा भी आया और हंसी भी छूट गई। उस समय अरहम के बाजू पर एक जोरदार मुक्का मारा और चबा चबा कर बोली, ख्वाब देखना बंद करो तुम। वो 2 लाख रुपए सिर्फ सिर्फ मेरी मलकियत है और तो तुम बचोगे नहीं मुझसे। मैंने तुमसे चुन चुन के बदले लेने हैं। इन 2 महीनों में तुमने मुझे सबके सामने ऐसे फंसवाया ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाशर करती हूँ। और हमने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए, जैसे हार मान रहा हो। बोला, जाने मन, मैं तो खुद हाजिर हूँ तुम्हारे सामने। तुम जो चाहे हशर करो मेरा, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो और यह हकीकत कोई नहीं बदल सकता। उन दोनों की इस खट्टी मीठी और प्यार सी तकरार ने उनकी आने वाली जिंदगी की खूबसूरत झलक उन्हें दिखा दी थी। तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। कैमरे वाले ने ऐलान किया, जब पूरी फैमिली की एक यादगार तस्वीर बनाई जाएगी। फिरोज खान, महानूर, खालिद, शाहिद, अंसर, कैसर, उनकी बेगमात और घर के तमाम बच्चे स्टेज पर जमा हो गए। दरमियान में असफंद और हुमा भी बैठे थे। उनकी एक तरफ मेहराब और शिजा खड़े थे और दूसरी तरफ अरहम और फिजा एक दूसरे को घूरते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए खड़े थे। जुनैद ने अपनी बेटी निहाल को कंधों पर उठाया हुआ था और सहरिश उसके साथ मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर एक तस्वीर नहीं थी, ये मोहब्बत, खानदानी रवायत, रिश्तों की मजबूती, कजन्स की शरारतों भरों के प्यार का एक ऐसा मुकम्मल और खूबसूरत शाहकार था जो इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होने जा रहा था। कैमरे की फ्लैश चमकी और इन सब के हंसते मुस्कुराते चेहरे हमेशा के लिए एक फ्रेम में महफूज हो गए। ये रस्म मोहब्बत की तकमील थी, एक ऐसा सफ़र जिसका आगाज शरारतों कहकों से हुआ था और जिसका अंजाम दिलों के इन खूबसूरत रिश्तों में हुआ जो कभी ना टूटने के लिए बने थे।